आप सब बहन भाई जानते हैं कि हमने पिछले चंद दिनों से सलीबी कलमात का सिलसिला शुरू कर रखा है ताकि गुड फ्राइडे से पहले पहले ये 7 सलीबी कलमात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और फेसबुक पर डाल सकूं ताकि जो जरूरतमंद हैं, खादमो दीन हैं, मुबश्शिर हैं, मुबश्शिराएं हैं, उनको किसी हद तक मदद मिल सके ताकि वो खुदा के जिंदा पाक कलाम को सीख सकें। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं। जितने बहन भाई आ चुके हैं, हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। मैं आप सब के लिए दुआगो हूं कि आप लोग टाइम निकाल कर आए ताकि खुदा के कलाम को सीखें। और अगर आप मजीद बरकत पाना चाहते हैं, एक तो आप कलाम को सुनने के वसीला से बरकत पा रहे हैं, और दूसरा एक और तरीका भी है बरकत पाने का, और वो ये है कि आपके साथ जितने लोग एडेड हैं उन लोगों को इनवाइट करें ताकि वो भी आपके साथ आकर खुदा के जिंदा कलाम को सुन सकें, और इस तरह से आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। मैं जानता हूं कि सुबह का वक्त छुट्टी है, लोग घरों में हैं और ज्यादा आराम पसंद करते हैं, लेकिन सबसे अहम अच्छा तरीका ये है कि हम खुदा के कदमों में मरियम की तरह, मार्था की बहन की तरह बैठकर खुदा के कलाम को सीखें। और आज हमारा सलीब पर से खुदा यीशु मसीह का तीसरा कलमा है। इससे बेशतर कि मैं कलमे की तरफ आऊं, तीसरे कलमे की तरफ आऊं। हम आज बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। वो बहन भाई सीखते, मैं अक्सर ये लफ्ज कहता हूं कि सीखते वही लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। तो लिहाजा इससे पेशतर कि मैं जिंदा खुदा का कलाम जो खुदा यीशु मसीह की ज़बाने मुबारक से तीसरा कलमा निकला, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। उससे पहले मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को ICPF TV चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके साथ ही बेल आइकॉन को जो है क्लिक करना मत भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो लिहाजा ये सलीब पर से खुदावंद यीशु मसीह का तीसरा कलमा है। याद रहे, पहले 3 कलमे दिन की रोशनी में कहे गए, आखिरी 4 कलमे जब अंधेरा छाया हुआ है उस वक्त कहे गए। हम इन कलमात को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी पहले 3 कलमे खुदावन ने दूसरों के लिए बोले, आखिरी 4 कलमे अपने लिए बोले। पहले 3 कलमे जबकि रोशनी थी बोले गए, आखिरी 4 कलमे जबकि अंधेरा छाया हुआ था।
اور تیسرا کلمہ سلیب پر سے خداوند نے بولا. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل 19 باب 27 ہے. Gospel of John chapter 19 verse number 27. یسوع مسیح نے یوں کہا, اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا, دیکھ تیری ماں یہ ہے. یہ کلمہ جمعہ کی دوپہر کے قریب جبکہ ابھی اندھیرا نہیں چھایا تھا ہمارے نجات دہندہ کے لبہائے مبارک سے نکلا, اور یہ کلمہ محبت کہلاتا ہے. اور محبت کے لیے جو گریک میں لفظ 3 لفظ استعمال کیے گئے ہیں. نمبر 1 اگاپے, نمبر 2 فلیو, نمبر 3 ایروز. لیکن ہم جو اس وقت آج کلمے کی روح ہے اور جو محبت کا کلمہ کہلاتا ہے, تو اس میں اگاپے محبت بھی پائی جاتی ہے اور فلیو محبت بھی پائی جاتی ہے. اگاپے محبت وہ ہے جو بے لوث محبت کی جاتی ہے, غیر مشروط محبت کی جاتی ہے. محبت کرنے والا دوسرے سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا. دنیا کی محبت میں ہم انہی سے محبت کرتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں, جہاں جس سے کسی سے کچھ ہمیں فائدہ ہو ہم انہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسی محبت نہیں کی. خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی. مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا, خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اس میں اگاپے محبت پائی جاتی ہے. اور ماں کے حوالے سے فلیو محبت بہن بھائیوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, عزیز و اقارب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے فلیو محبت کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. تو ایروز ہے جو میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے. تو یہاں پر جو کلمہ محبت کہلاتا ہے اس میں اگاپے محبت کا ذکر ہے اور فلیو محبت کا ذکر ہے. تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے وقت 4 شخصیتیں صلیب کے قریب موجود ہیں. جمع غفیر ہے, 3 عورتیں, خداوند یسوع مسیح کی ماں والدہ ماجدہ اور اس کی بہن اور مریم مغدلینی. یہ 3 عورتیں وہاں پر موجود ہیں. شاید اس لیے کہ عورتوں کو آسانی ہوتی ہے یا لوگ ان پر رحم کھا کر ان کو موقع دے دیتے ہیں. باقی کوئی شاگرد قریب نظر نہیں آتا. صرف نظر آتا ہے تو ایک ہی شاگرد نظر آتا ہے جس کی سینہڈرن تک رسائی تھی, مذہبی جماعت تک رسائی تھی اور دولت مند شخص تھا, اور اس لیے وہ صلیب کے قریب ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے تیسرے پہر کے قریب اس کے لبہائے مبارک سے یہ کلمہ نکلا, اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد کی طرف کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے. اب اس وقت جو مسیح یسوع کی حالت ہے, ہاتھ اور پاؤں میں کیل گاڑے ہوئے ہیں. صلیب پر خداوند یسوع مسیح سخت کرب اور اذیت کی حالت میں ہے. سر پر کانٹوں کی چبھن ہے. یہ کانٹے صرف یسوع کے سر ہی کو
कांटों की चुभन महसूस नहीं हो रही, बल्कि ये कांटे मुकद्दसा मरियम के दिल को भी छेद रहे हैं। जी हाँ, पढ़ें मुकद्दस लूका की अंजील 2 बाब उसकी 35 आयत। जब शमाऊन जो है वो मुकद्दस हैकल में आता है, खुदा यीशु मसीह को अपनी गोद में उठा के दुआ करता है और उसके बारे में, मसीह यीशु के बारे में भी पेशन गोई करता है और साथ कुछ इजाफी अल्फाज भी बोल दिए मुकद्दसा मरियम के लिए कि तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी और बथेरों के ख्याल खुल जाएंगे, सामने आ जाएंगे। तो 30 साल तक 33 साल तक इस पेशन गोई की खोज में मुकद्दसा मरियम रही, लेकिन इसकी पेशन गोई उसको ना मिली। आज सलीब पर मुकद्दस शमाऊन, बुजुर्ग शमाऊन की पेशन गोई की तकमील होती नजर आ रही है। तो मैंने कहा ये कांटे सिर्फ खुदा यीशु मसीह के सर ही को नहीं छेद रहे, ये कांटे मुकद्दसा मरियम के दिल को भी छेद रहे हैं। तो आज उसको समझ आई मुकद्दस शमाऊन की पेशन गोई की। ये हाथ जो सलीब पर लटके हुए हैं, जिन पे कील गाड़े हुए हैं, ये हाथ मुकद्दसा मरियम के साथ बगलगीर हुआ करते थे। और मुकद्दसा मरियम जो मोहब्बत से इन हाथों को, हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, जब वो छोटा था वो गले लगता था, बगलगीर होता था और वो मोहब्बत से इन हाथों को चूमा करती थी। आज देखकर वो बेबस, एक बेबसी का मुजस्मा बन के खड़ी है, रोमी हुकूमत और मजहबी हुकूमत के सामने बेबस है। वो कुछ भी तो नहीं कर सकती, बिल्कुल बेबस और निढाल नजर आती है। शायद उन 2 औरतों ने सहारा देकर उसको खड़ा किया हुआ है। ये माँ ही एक बच्चे के दुख को समझ सकती है। तो हम लोग तो कलमा बोल देते हैं, लेकिन उस कलमे की डेप्थ में और उस कलमे की गहराई में पहुंचना बहुत मुश्किल है। कि ये कलमा खुदावंद खुदा ने जब बोला तो उस वक्त खुदा यीशु मसीह के दिल के तासुरात और मुकद्दसा मरियम के दिल के तासुरात क्या थे। तो ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने, एक मेरे ज़हन में सवाल आया कि ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों बोला। हर कलमे के बोलने का एक मकसद है। शायद हम जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मैं खुदा का खादम होते हुए ये आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब भी खुदा ने जो कलमा बोला उसके पीछे कोई मकसद था। तो अब सवाल ये पैदा होता है, इस कलमे के पीछे मकसद क्या था? क्या आप जानते हैं? अब कलाम ये कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है और वो हमारे दिलों को जानता है। जब उसने मफलूज के गुनाहों को माफ किया तो फकी फरीसी अपने दिल में खुसर फुसर कर रही है, तो खुदा ने उनके दिलों के हाल को जान लिया। तो उसने अपनी माँ के दिल को भी जान लिया, अपनी माँ के दिल को भी पढ़ लिया कि ये क्या सोच रही है। वो ये सोच रही है कि तू मेरा इकलौता बेटा था और तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। तेरा बाप पहले ही मेरा साथ छोड़ के चला गया है, तू मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहा है। तो फौरन सलीब पर से खुदावन ने माँ के दिल के हाल को पढ़ लिया और सलीब पर से माँ की तसल्ली के लिए यह कलमा सादर फरमाया, आए माँ, आए औरत, माँ लफ्ज नहीं कहा, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। मैं तेरा वो बेटा हूं। मैं उस वक्त तक अपनी जान नहीं दे सकता जब तक कि मैं तेरा बंदोबस्त ना कर लूं। तू क्यों ऐसा सोच रही है? मैं उन नाफरमान औलाद में से नहीं हूं।
मैं तेरा फर्मा बरदार बेटा हूं। तूने हर मोड़ पर मुझे फर्मा बरदार पाया। जब मैं आज जुदा हो रहा हूं तो तू तो सोच रही है, तेरे सोचने से पहले ही मैंने तेरा बंदोबस्त कर दिया है। हालेलुया। और खुदावन ने ये जिम्मेदारी मुकद्दस यूहन्ना रसूल को दी। वो गरीब शख्स नहीं था, वो दौलतमंद था। उनकी अपनी कश्तियां थी, उनके अपने नौकर चाकर थे। और कलाम बताता है कि जब तक मुकद्दसा मरियम हयात रही उसने अपनी माँ की खिदमत की, और उसके इस दुनिया से रहलत फरमा जाने के बाद उसने अपनी खिदमत का आगाज जो है इफसस शहर से किया। तो ये बात मैंने कही कि ये कलमा कहने की जरूरत क्यों पड़ी, और ये मोहब्बत का कलमा है, इसके हवाले से हमने बात की। अब एक बड़ी खास बात मैं करने को जा रहा हूं। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग जानते हों। अब इस बात पे गैर कौमें भी, शायद आपने सुना या नहीं सुना, अक्सर लोगों की डिबेट होती है कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी मां को औरत का लफ्ज कह के क्यों पुकारा। तो हमारे पास जो हमारे मुफस्सरीन हैं, बाइबल के थियोलॉजियंस हैं और डॉक्टर्स हैं बाइबल के, जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने बाइबल कमेंट्री या तफसीरें की हैं, वो यूनानी ज़बान का एक लफ्ज का सहारा लेते हैं इन लोगों को और अपने लोगों को जवाब देने के लिए कि ये कोई लफ्ज है, ऐसा गिरा हुआ लफ्ज नहीं है। बेइज्जती का लफ्ज खुदा यीशु मसीह ने मां के लिए नहीं इस्तेमाल किया। ये उस वक्त अदब के जुमरे में आता था, और ये लफ्ज गुने का तर्जमा है। गुने का मतलब है आए मुअज़्ज़ज़ खातून, आए मुअज़्ज़ज़ औरत, आए मुअज़्ज़ज़ बीबी। तो ये जवाब हमें दिया जाता है, और मैं भी कई साल तक यही सुनता रहा, लेकिन मेरी तिशनगी खत्म ना हुई। मैंने कहा, जब मैंने आज तक अपनी माँ को औरत नहीं कहा तो यीशु कैसे औरत कह सकता है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने अपनी माँ को आई औरत कह के पुकारा है। माँ की ममता को ठंडक, हालेलुया, माँ की ममता को ठंडक उसी वक्त पड़ती है जब उसे माँ कह के पुकारा जाए। औरतें तो सभी होती हैं, माएं सब नहीं होती। माँ ही होती है। तो कुछ मुफस्सरीन ये तशरीह करते हैं कि उसने माँ का लफ्ज इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसका दिल पहले जख्मी था। तो अगर खुदा यीशु मसीह उसको माँ कह देता तो उसका दिल और चूर चूर हो जाता, उसका दिल मजीद जख्मी हो जाता, तार तार हो जाता, और इसलिए उसने माँ कह के नहीं पुकारा। हो सकता है कि जो तशरीह हमारे रूहानी पेशवा करते हैं वो अपने इल्म के मुताबिक करते हैं, लेकिन मैं कुछ बाइबल के मुताबिक जो रूहानी तौर पर खुदा के पाक रूह ने मुझे टीच किया। जब हम खुदा के कदमों में बैठते हैं तो एक लफ्ज कलाम के लिए रेमा इस्तेमाल किया गया। रेमा कहता हुआ कलाम है। जब हम सवाल करते हैं तो खुदा जवाब देता है। तो मैंने भी खुदा से ये सवाल किया कि आपने
अपनी वालदा मोहतरमा को औरत का लफ्ज कह के क्यों पुकारा? तो याद रहे कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी वालदा के लिए औरत का लफ्ज 3 बार इस्तेमाल हुआ। मालूम है कहां का 3 बार लफ्ज इस्तेमाल हुआ? बल्कि मैं यूं कहूं 4 दफा। अब मैं बताऊंगा, मैं कोई बात ऐसे नहीं हवा में नहीं करता, मैं उसका सबूत देता हूं। पहली बार हम ये देखते हैं पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। जब आदम और हवा ने शजरे ममनुआ का फल खाया और सजा दी गई शाम को, आदम को और हवा को। शाम से कहा कि क्योंकि तूने ये किया है तो तू पेट के बल चलेगा, और औरत से और आदम से कहा कि ये तेरी एड़ी पर काटेगा, और उससे कहा कि जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो तेरे सर को कुचलेगा। ये मिनी अंजील है, मिनी गॉस्पेल है। यहां औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसको आपने याद रखना है। दूसरी बार मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 2 बाब में जब मैं खत्म हो गई तो उस वक्त मसीह ने कहा कि आए औरत मुझे तुझसे क्या काम। और तीसरी बार खुदा ने गलतियों पौलुस रसूल का गलतियों के नाम खत उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, गलतियों 4 बाब 4 आयत। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा जो औरत से पैदा हुआ। ये तीसरी बार औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया ताकि पुराने ऐदनामे की पेशन गोई पूरी होती नजर आ जाए। अब चौथी बार खुदा यीशु मसीह ने अपनी वालदा मोहतरमा को औरत कह के पुकारा, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। तो एतराज करने वाले ये कहते हैं कि मसीह यीशु ने अपनी मां की बेइज्जती की है, और हमारे मुफस्सरीन कहते हैं बेइज्जती नहीं की, ये गुने लफ्ज की तफसीर है या तशरीह है। हकीकत में मैं ये नहीं कहता कि हमारे मुफस्सरीन गलत बयान कर रहे हैं, लेकिन मैं उस ख्याल को बयान कर रहा हूं जो मुझे खुदा ने जवाब दिया है, जो हकीकत के करीब तर नजर आता है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तो अपनी बशरियत में भी पहले बताया था कि मैं औरत की नस्ल हूं, जिसका जिक्र पैदाइश 3:15 में किया गया है। और अब मैं जाते जाते फिर एक बार बता रहा हूं, जिसके बारे में लिखा था कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। तो लिहाजा यहां पर भी हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वाज़िया तौर पर पैदाइश 3:15 की पेशन गोई की तशरीह करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं ही, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया लिखें, थैंक यू जीसस। और उसने कहा कि मैं ही वो औरत की नस्ल हूं जिसने सलीब पर चढ़कर इब्लीस के सर को कुचल दिया, उसे मफलूज कर दिया, उसको जिसको मौत पर कुदरत हासिल थी उसे मौत की नींद सला दिया। इब्रानियों 2 बाब 14वीं आयत का मुतालिया करें। तो लिहाजा हम ये देखते हैं कि इब्लीस हारा हुआ दुश्मन है। इस कलाम में से
एक बार हमारे बड़े भाई ने इब्लीस के सर को कुचला, आज बेशुमार इब्लीस के हमले हैं। एंटी क्राइस्ट जो है अपने एजेंट्स को जो है हमारी एड़ी को कुचलने के लिए, हमारी जिंदगियों को कुचलने के लिए, हमारी जिंदगियों को निगलने के लिए कोरोना वायरस को और तरह तरह की बीमारियों को भेज रहा है। लेकिन ये जान ले कि आप फाते हैं। बोले मैं फाते हूं, आई एम विक्टोरियस। मेरे बड़े भाई ने जंग जीत ली है। मैं बड़े भाई की जंग जो उसने जीती है उसमें मैं शरीक हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड यहोवा की। एक बार हमारे बड़े भाई ने सलीब पर इब्लीस के सर को कुचला, अब मेरी और आपकी बारी है कि हम इब्लीस के सर को कुचलें। बट वेयर इट इज रिटन, कहां लिखा है? रोमियो 16 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है। कहां लिखा है? रोमियो 16 बाब उसकी 20वीं आयत। और खुदा जो इत्मीनान का सर चश्मा है वो जल्द इब्लीस को तुम्हारे पांव तले कचलवा डालेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड यहोवा की। तो लिहाजा ये तीसरा कलमा हमने मोहब्बत के हवाले से सीखा है। और अब चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि इस कलमे से हम क्या सीखते हैं। देख तेरा बेटा ये है, खुदा यीशु मसीह ने कहा। तो लिहाजा उसके बाद मुकद्दस यूहन्ना रसूल उसको माँ को अपने घर ले गया। इस कलमे से हम क्या सीखते हैं? चंद बातें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह ने अपनी माँ की खिदमत किसी गरीब आदमी के हवाले नहीं की, बल्कि एक साहिबे दौलतमंद के हवाले की। और उसने उसकी खिदमत की जब तक वो हयात रही। उसके बाद हम ये सीखते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपने दुख और मुसीबत में भी अपनी मां को नहीं भूला और उसने अपने फर्ज को आखिरी लम्हे भी निभाया। नंबर 2, ये कलमा तीसरा कलमा जो है, मोहब्बत का कलमा जो है, ये 5वें कलमे पर मुअस्सर वाज है, जो लिखा कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर। खरूज 20:12, जिसके साथ वादा भी है, जिस मुल्क में तू जा रहा है वहां तेरी उम्र दराज होगी। जितने नौजवान हैं, ये कलमा आज की नौजवान नस्ल के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है कि वो कितने अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, क्योंकि इसके साथ वादा, ये एक ही हुक्म है जिसके साथ वादा है। तो इसीलिए यूहन्ना रसूल ने सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाई, क्योंकि उसने मुकद्दसा मरियम अपनी माँ की खिदमत की। तकरीबन नियरली 100 बरस तक वो जिंदा रहा। जजीरा पतमस में उसने मकाशफा, उस पर ज़ाहिर हुआ, मकाशफा की किताब उसने लिखी। वो आखिरी सदी तक वो जिंदा था। तो ज्यादा मैं मजीद बात नहीं करना चाहता, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। और इसके बाद हम ये सीखते हैं, इस कलमे से ये ज़ाहिर होता है कि मुकद्दसा खुदा यीशु मसीह अपनी वालदा से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और आखिरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ हमारी रूहानी और अब्दी बातों में फिक्र नहीं करते, खुदा हमारी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा करते हैं। हालेलुया। ज़बूर नवीस कहता है कि वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, हर रोज वो ताजा है,
हर रोज वो हमारा बोझ उठाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी बड़ी बड़ी बातों की, रूहानी बातों की फिक्र ही नहीं करते, बल्कि हमारी छोटी छोटी बातों की भी फिक्र करते हैं। ये इस कलमे से हम सीखते हैं। ये कलमा उन खादमीन के लिए भी एक चैलेंज है जो कि अपनी रूहानियत में अपने खानदान को भूल जाते हैं। ये तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है। आए औरत, देख तेरा बेटा ये है, और शिगिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है। और उसके बाद शिगिर्द मुकद्दसा मरियम को अपने साथ ले गया, और जब तक वो हयात रही उनकी खिदमत करता रहा, और जब इस दुनिया से रुखसत हो गई तो फिर उसने अपने मिशनरी खिदमत का दौरा इफ्सत से किया। खुदामंद खुदा इस तीसरे कलमे के वसीला से मुझे और आपको ढेरों बरकत अता करे। आमीन आमीन। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम हर रोज ऑनलाइन आते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। BICPF TV चैनल, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आने वाली आप सबको मिल सके और हर रोज आप कलाम से फैज याब हो सके। जितने व्यूअर्स आए, मैं आप सबको वेलकम करता हूं, आप सब के लिए बरकत मांगता हूं। और अगर कोई आपकी दरखास्त है तो मैं दुआ करता हूं खुदामंद खुदा आप सब की दरखास्तों को, जरूरतों को पूरा करे। तमाम बीमारियां यीशु के खून के वसीला से आपके बदनों से जाती रहें। ये सब कुछ हम उस चीज के नाम से मान के कहना सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश बल्कि बुराई से बचा, उनके पास शाहत कुदरत जला हमेशा तक रही है। आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ात शराकत हमारे साथ, तमाम कसों के साथ, हमारे खानदानों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक और इत्तला को देना चाहता हूँ कि मैं 3 दिन रात को शाम को 9 बजे भी ऑनलाइन आता हूँ। आज रात मैंने 9 बजे ऑनलाइन आना है, जो सुन रहे हैं। आज मैंने कलाम सुनाना है 70 हफ्तों, विजन ऑफ 70 वीक्स ऑफ डैनियल, और आप इसकी स्टडी करें, दानियल 9 बाब उसकी 27 आयत की। और ये इस आखिरी वक्त के बारे में है और ये सीखना बहुत जरूरी है, और जो कलाम को सीखने वाले उनके लिए बहुत फायदेमंद ये पेशन गोई होगी। और ये कलाम होगा 70 हफ्तों की रोया, और आप खुद भी आए और दूसरों को भी लेके आए। थैंक यू वंस अगेन। आमीन।